नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाता। भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन सारनी टीका तत्व प्रदीपिका एनो स्वाध्याय આપણે કર્યા છીએ। એમાં 65મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। આચાર્ય ભગવાને 65મી ગાથામાં એમ કહે છે કે શરીર દ્વારા સુખનો અનુભવ થતો જ નથી। સ્પર્શ આદિ જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ જેનો આશ્રય કરે છે એ બધા વિષયો એને પામી અને જીવ પોતે અશુદ્ધ ભાવે પરિણમતો થકો એ આત્મા પોતે સ્વયંમેવ સુખરૂપ થાય છે, પણ એ કઈ શરીર સુખરૂપ થાય છે એમ નથી, દેહ સુખરૂપ થતો નથી। તો 65મી ગાથા એનો અન્વયાર્થ ટીકા ભાવાર્થ અને પૂજ્ય ગુરુદેવે આ ગાથા ઉપર કરેલ પ્રવચનનો કેટલોક ભાગ આપણે કર્યો છે। શેષ ભાગ આજે લઈશું। ભાવાર્થથી આગળનો ભાગ પૂજ્ય ગુરુદેવ આજે સમજાવશે તે આપણે સમજીશું અને તે પછીથી 66મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ કરે છે તો એ પણ આપણે આજે લઈએ છીએ। 66મી ગાથામાં ઉપોદ્ઘાતમાં કહે છે કે આ જ વાતને દ્રઢ કરે છે, એટલે 65મી ગાથામાં જે વાત આવી છે એ જ વાતને 66મી ગાથામાં દ્રઢ કરે છે। 66મી ગાથા આપણે લઈએ। સંસ્કૃતમાં 66મી ગાથા આ રીતે છે। એકાંતેન हि देह सुखम न देहि न करोति स्वर्गे वा विषय वशेन तु सौख्यम दुखम वा भवति स्वयं आत्मा। गुजरातीમાં 66મી ગાથા આ રીતે છે। એકાંતથી સ્વર્ગેય દેહ કરે નહીં સુખ દેહીને, પણ વિષય વશ સ્વયમેવ આત્મા સુખ વા દુઃખ થાય છે। સ્વર્ગમાં દેવ નું શરીર હોય ને, વિક્રિય શરીર હોય તો એનાથી ખરેખર સુખ થતું નથી। ગાથાના અર્થમાં કહે છે કે એકાંતે નહીં, એકાંતે અર્થાત નિયમથી, અહીંયા એકાંતે નહીં એમ કહ્યું છે એટલે કે નિયમથી એમ જ છે। સ્વર્ગે વા દેહ દેહીન સુખમ ન કરોતિ, નિયમથી સ્વર્ગમાં પણ દેહ દેહીને, એટલે દેહી એટલે આત્માને, જેને દેહ ધાર્યો છે એવો દેહી એટલે આત્મા, સ્વર્ગમાં પણ દેહ આત્માને સુખ કરતો નથી। વિષય વશેન તુ સૌખ્યમ દુઃખમ વા સ્વયં આત્મા ભવતિ, પરંતુ વિષયોના વશે સુખ અથવા દુઃખરૂપ સ્વયં આત્મા થાય છે। એકાંતે એટલે કે નિયમથી સ્વર્ગમાં પણ દેહીને એટલે આત્માને સુખ કરતો નથી, પરંતુ વિષયોના વશે સુખ અથવા દુઃખરૂપ સ્વયં આત્મા થાય છે। ટીકામાં આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આ અહીં સિદ્ધાંત છે કે શરીર, પછી એ ભલે વૈક્રિય શરીર હોય, દેવનું શરીર હોય, ભલે તે દિવ્ય વૈક્રિય પણ હોય, વૈક્રિય શરીર તો નારકીને પણ હોય છે અને દેવને પણ હોય છે, પણ નારકીના વૈક્રિય શરીર અને દેવના વૈક્રિય શરીરમાં ફેર છે। દિવ્ય વૈક્રિય શરીર જેમ જેમ દેવલોકમાં, ઉપરના દેવલોકમાં જાય છે તેમ તેમ એના શરીર પણ એવા હોય છે, એટલે કહે છે કે ભલે તેને દિવ્ય વૈક્રિય પણ હોય તો પણ સુખ કરી શકતું નથી। શું? શરીર સુખ કરી શકતું નથી। માટે ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ વિષયોના
વશે સુખ અથવા દુઃખરૂપ સ્વયંમેવ આત્મા થાય છે. શરીર સુખ દુઃખ કરી શકતું નથી. આત્મા પોતે સ્વયં સુખ દુઃખરૂપ થાય છે. ભાવાર્થમાં કહે છે કે શરીર સુખ દુઃખ કરતું નથી. દેવનું ઉત્તમ વૈક્રિય શરીર સુખનું કારણ નથી કે નારકનું શરીર દુઃખનું કારણ નથી. આત્મા પોતે જ ઇષ્ટ અનિષ્ટ વિષયોને વશ થઈ સુખ દુઃખની કલ્પના રૂપે પરિણમે છે. તો એ રીતે આ 66મી ગાથા છે. 65મી ગાથાના અનુસંધાનમાં આજે જે વાતને દ્રઢ કરતી આ 66મી ગાથા છે. તો આપણે એનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પ્રવચન સુધા ભાગ 3 એના પાના નંબર 174 ઉપર 65મી ગાથાના ભાવાર્થ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ જે વિસ્તાર કરે છે તે આપણે લઈએ છીએ. गाथा उसका भावार्थ सशरीर अवस्था में भी आत्मा ही सुख रूप प्रणति में परिणमन करता है. क्या कहते हैं? क्या शरीर है? शरीर तो शरीर में सुख नहीं. शरीर में सुख नहीं यानी सुख का एक कारण ही नहीं. किसका? विषय सुख का. इंद्रिय सुख का भी शरीर कारण नहीं. आत्मा का सुख का तो कारण अंतर सम्यक दर्शी में तिकाली ज्ञायक भाव प्रकट करके अतीन्द्रिय आनंद का कारण तो आत्मा है. आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है. उसको शरीर हो तो सुख मिले ऐसा है नहीं. ये सिद्ध करने को यहाँ इंद्रियवन वाला को भी शरीर से सुख नहीं. જેની વાત है शरीर तो जड़ है, धूड़ है, અને अपनी कल्पना से मानते हैं कि मैं सुखी, इंद्रिय का विषय में मैं सुखी हूँ. ये तो कल्पना का परिणमन है. शरीर कारण है, उसमें है नहीं. ये अज्ञानी तो माने है. यहाँ तो कहते हैं कि सशरीर दशा में भी और शरीरी दशा में सिद्ध को शरीर नहीं है मटे सुख नहीं, ऐसा नहीं. शरीर रहित आत्मा सिद्ध है और आत्मा भी शरीर ने राग रहित ऐसी दृष्टि हो, सम्यक दर्शन हो, तो उसमें शरीर ने राग रहित आत्मा में आनंद है तो आत्मा का आनंद प्रकट होता है. धर्म की दृष्टि में भी आत्मा में आनंद है. अतीन्द्रिय आनंद विनायक स्वरूप शुद्ध चैतन्य, उसकी दृष्टि करने से अतीन्द्रिय आनंद है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है. उसको व्यवहार से भी पर्याय की दृष्टि से नहीं, राग की दृष्टि से नहीं, शरीर की दृष्टि से नहीं, अपना चिदानंद स्वरूप शुद्ध हो आनंद कंद प्रभु है. सम्यक दर्शन में उसका ध्येय बनाकर जो आनंद होता है, अतीन्द्रिय आनंद आत्मा में है, उससे आनंद होता है. यानी कोई राग के शरीर हो तो आनंद होता है, ऐसा है. तो आए तो कहते हैं शरीर अवस्था में भी इंद्रिय सुख जो है इस शरीर के कारण नहीं, आत्मा का सुख तो क्या है नहीं. अनादि शरीर का वश होकर शरीर दशा में पण आत्मा ही सुखरूप, इंद्रिय सुखरूप. मने ठीक है, इंद्रिय का विषय ठीक है, शब्द रूप रसगम ठीक है, ऐसा प्रणति अज्ञानी शरीर बिना अपने कारण से प्रणति करते हैं.
शरीर कोई कारण है, उसमें इंद्रिय सुख में भी शरीर कारण नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म विषय थोड़ा। सशरीर दशा में पण आत्मा सुख इंद्रिय सुख रूप प्रणति में परिणमन करता है। राग ने पुण्य पाप का भाव मैं हूं ऐसा इंद्रिय सुख में पोते अपना शरीर के बिना अपनी प्रणति से सुख की कल्पना में इंद्रिय का सुख में परिणमन करता है। नहीं, ये जानी बात करते हैं। शरीर बिल्कुल नहीं। शरीर किंचित इंद्रिय सुख में कारण नहीं। इंद्रिय सुख हो, आत्मा का सुख तो आत्मा में है। पर इंद्रिय का सुख में भी यहाँ परमात्मा पुकारते हैं। इंद्रिय का सुख में भी शरीर कारण नहीं है। इंद्रिय सुख रूप कल्पना मिथ्या भ्रांति में मिथ्याति दृष्टि में सुखी में विषय में सुख है ऐसी प्रणति करते हैं। विषय के शरीर कोई उसको सुख उपजावे ऐसा है नहीं। इंद्रिय का विषय में आत्मा का सुख में तो आत्मा का आश्रय है। त्रिकालीय आनंद स्वरूप का आश्रय करते हैं तो आनंद होता है। पर इंद्रिय का सुख में भी शरीर कारण नहीं। समझ में आया? ये इंद्रिय सुख रूप परिणति माने ठीक है, विषय में ठीक है, ऐसा राग रूपी इंद्रिय का विषय में दुख रूपी परिणमन करते हैं। उसमें कोई शरीर कारण है नहीं। विषय सुख में भी ये आनंद मानते हैं, इस शरीर कारण नहीं उसमें कहते हैं। ये कल्पना मानते हैं, मने मजा पड़ती है विषय में, भोग में, ऐसी परिणति करते हैं। इंद्रिय सुख में ये भ्रांति है, ये अपने से परिणमन करते हैं, शरीर कारण है नहीं। तो पैसा वैसा तुम्हारी धूड़ तो कारण है नहीं, हम कहते हैं। जाएंगे भाई न थेगा रजनी या रमन भैया वाना तन समझ में आया? क्या कहते हैं? मूल तो सीध में शरीर नहीं सत्य आत्मा का आनंद है। ये बताने को यहाँ भी शरीर सुख का कारण नहीं बताना है। यहाँ भी शरीर सुख का कारण नहीं, पर कल्पना करते हैं मेरे के ठीक है आमा विषय में मजा पड़ते। ऐसा इंद्रिय का सुख जो भ्रांति में प्रणति अपनी प्रणति करते हैं तो उसमें भ्रांति कारण है, वो शरीर कारण नहीं। ये माटी तो बात करते हैं कि शरीर जो कारण हो तो शरीर सीध में शरीर नहीं है, मेरे शरीर कारण है ही नहीं। इंद्रिय सुख में भी शरीर कारण नहीं, तो अतीन्द्रिय सुख आत्मा का सिद्ध का सुख में शरीर कारण है या नहीं? न्याय समझते न्याय लॉजिक से न्याय समझना पड़े भैया। आज ये बात करने को किस परमात्मा सिद्ध हुआ नमो सिद्धांत, तो उसको शरीर है नहीं, तो शरीर नहीं है तो सुख नहीं है कि उसको भी शरीर कारण नहीं। सुख का कारण तो भगवान आत्मा है। अतीन्द्रिय आनंद तरफ की दृष्टि में अनुभव में अतीन्द्रिय आनंद आता है, तो यहाँ शरीर सहित में भी शरीर इंद्रिय का सुख में कारण नहीं, शरीर अकिंचित कर है। अज्ञानी राग रूपी प्रणित करते हैं और इंद्रिय सुख मेरे के है ऐसे मानते हैं।
શાંતિભાઈ આવી વાત છે. હા હા, भगवान प्रवर्तन सार है. दिव्य प्र विशेषे वचन, दिव्य ध्वनि, ऋण लोकना नाद परमात्मा की दिव्य ध्वनि उसका सार है. तो उसमें ये बताना है कि सिर भगवान जो है उसको शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं. तो शरीर इंद्रिय नहीं तो सुख है कि नहीं? कि शरीर ने इंद्रिय कारण अहिया भी नहीं. हाँ, इंद्रिय का विषय में भी शरीर ने इंद्रिय कारण है ही नहीं. ये तो जड़ है, धूड़ है, माटी है. अज्ञानी कल्पना करके राग रूपे प्रणमते हैं अने मैं सुखी हूँ इंद्रिय का विषय में, ऐसा मिथ्या दृष्टि मानते हैं. ये शरीर के कारण से नहीं. एवं पैसा के कारण से नहीं है तो बोले क्या जूदी रही गया की बात. ये तो दूर है. समझ में आया? पैसा के कारण में सुखी, संसार का सुखी हो, ये दुखी. पर ये संसार का सुख भी पैसा का कारण नहीं. ये कल्पना करते हैं कि मैं ठीक है, मैं सुखी हूँ, ऐसा मिथ्या रूपी भ्रांति में प्रणमते हैं तो सुख रूप मानते हैं. समझ में आया? शरीर नहीं, ये इंद्रिय सुख रूप परिणति में परिणमन करता है आत्मा, अज्ञानी आत्मा. अपना में आनंद है, ये भूलकर इंद्रिय सुख में ठीक है ऐसे सुख की कल्पना रूपे प्रणमते हैं. ये शरीर नहीं, ये सुख रूपी प्रणति में शरीर कारण नहीं. तो पैसा न स्त्री का शरीर ने मकान बड़ा, मकान में आबरू बड़ी, सुख का कारण ऐसा है नहीं. इंद्रिय का विषय में भी वो कारण तो है ही नहीं, हम कहते हैं. ये अज्ञानी की कल्पना रूपे परिणमना वो सुख का, इंद्रिय का विषय का, इतने दुख का कारण ये है. आखिरी बात है भाई, वितराग मार्ग बहु कठिन. ये तो इंद्रिय में सुख मानते हैं तो शरीर से नहीं, हम कहते हैं. पैसा से नहीं, आबरू से नहीं. स्त्री का शरीर हाड़ का, मांस हाड़ का है, मांस में हाड़ का है. तो उससे यदि कल्पना मानते कि मेरे सुख है, इसी शरीर के कारण से नहीं. एम अपना शरीर भी सुंदर ने मांस में हाड़ का सारा है तो अंदर इंद्रिय विषय मानते हैं तो शरीर कारण है, ऐसा है नहीं. ये तबीयत है, मूड के पास तबीयत किसी शरीर नहीं है. आत्मा की क्या तबीयत है कि मैं दुखी हूँ. सम्यक दृष्टि की तबीयत क्या है कि मैं सुखी हूँ. मेरा आत्मा आनंद स्वरूप भगवान, उसका आश्रय से भूतार्थ वस्तु है. आत्मा भूत नाम छतो, अर्थ नाम भाव. भूतार्थ है, भूत छतो अर्थ भाव. सती चीज अंदर भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसका आश्रय करने से अतीन्द्रिय आनंद की, शांति की प्राप्ति होती है. उसमें आत्मा कारण है, विकल्प भी कारण नहीं. दया दान का, राग का विकल्प है, ये भी आत्मा का. इंद्रिय सुख में वो भी कारण नहीं. अरे गुण गुणी का भेद का विकल्प भी इंद्रिय सुख में कारण नहीं, अतीन्द्रिय सुख में कारण नहीं. तो इंद्रिय सुख में तो कारण है कहाँ? ये बात भाई.
ये मानते हैं, ये अज्ञानी ये प्रणते हैं, इच्छा में प्रणते हैं, सुख में है, इससे अज्ञानी मानते हैं। पर वो इच्छा का सुख में शरीर कारण नहीं, इससे तो अभाव में तो अपना आत्मा क्या अनंत सुख है। इच्छा का भाव ये दुख, ये सुख है इंद्रिय का विषय, शरीर कारण नहीं, ऐसा ही बताना है। इंद्रिय का विषय में भी शरीर कारण नहीं, यही पहला बताना है। इस तेरी प्रणति त्रिकाली भगवान को भूलकर अतीन्द्रिय आनंद का, नाद का स्वामीपना छोड़कर इस इंद्रिय में सुख है ऐसी कल्पना रूपे तुम प्रणमते हैं, उसमें शरीर कारण नहीं। इसमें पैसा कारण नहीं, आबरू कारण नहीं, 5-50 लाख का बड़ा मकान हो तो उसको सुख का कारण नहीं, इंद्रिय का सुख हो, आत्मा का सुख हो क्या है क्या? वो कह रहे मैं पैसे टके सुखी चाहिए, तो कैसे कि ये बात झूठी है। पैसे टके सुखी नहीं अज्ञानी, अज्ञानी मानता माया जो परिणति करते हैं अशुद्ध, उसमें सुख मानते हैं, वो परिणति उसकी है, ये शरीर कारण से है ऐसा है नहीं। શેઠ એવી વાત હે, ત્યારે તો સાંભળવું મુશ્કેલ પડે, ચીજ એવી થઈ ગઈ, લોકો કંઈક ના કંઈક રાખીને કે આ શેઠી મકાન શું કરવાને કહેવાય, રહેવાય કોઈ 15 મહિનો રહે, પછી 12 મહિના ત્યાં નોકરી વાળા 50 વર્ષ 55 વર્ષે રિટાયર થાય છે, નહીં તો 50 વર્ષ થાય તો રિટાયર નહીં। हाँ तो प्रभु एम पुकारते हैं, त्रिलोक नो नाथ, सर्व के शरीर के कारण से प्रभुति इंद्रिय का सुख भी नहीं, तेरी कल्पना से इंद्रिय का सुख तुम मानते हैं, ये तेरा परिणमन है विकार का, उसमें तुम सुख मानते हैं, उसमें शरीर बिल्कुल कारण नहीं, ये तो माटी जड़ धूल है। एक पण न्याय उसको यथार्थ बेसना चाहिए न। दाल भात शाक सारा मीठू અને પતર अड़वी का भजिया, ये कोई सुख का कारण नहीं हम कहते हैं, फक्त क्या कल्पना मानते हैं, ठीक है, ये उसका विकार रूप परिणमन करते हैं, ये सुख का इंद्रिय सुख का ये कारण है। इंद्रिय सुख है दुख, लोग को मानते हैं ये पेशवाद क्या है। गर्मी बहुत शरीर में हुई, पंखा ठंडा पानी, कैसे कि इंद्रिय सुख में ये कारण नहीं, यानी कल्पना रूपी परिणमन ये कारण है। ये पंखा न हवा न ठंडी बहुत बेहोश जैसा हो जाने, हवा ना के तो ना के, ये कारण है इंद्रिय सुख का कि ना तो पर चीज है, पर को तो छूते ही नहीं आत्मा, इंद्रिय का सुख में पर को तो छूते ही नहीं। कारण काल तृण लोक में अपना पर्याय सिवाय पर द्रव्य को कभी छूते नहीं। अरे रे कौन माने, तीजी गाथा में कहा ना, शिव पहले कहा था, तीजी गाथा, प्रत्येक पदार्थ भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव सर्वज्ञानी दिव्य धनी है कि प्रत्येक पदार्थ
अपना गुण ने पर्याय को चूमते हैं, छूते हैं, स्पर्शते हैं। अन्य द्रव्य की गरल गुण पर्याय को कभी छूते नहीं। तो शरीर की पर्याय को आत्मा कभी छूता ही नहीं। अपना राग ने द्वेष की पर्याय में छूते हैं। ज्ञानी अपना आनंद ने शांति के पर्याय में छूते हैं। आओ महाराज, બિચારાને મળતો નથી ક્યાંય બહાર ત્યાં હો અરે અનંતકાળે રજળતા એને આત્મા ભગવાન तीर्थंकरना जन्म जैन धर्म जन्म्या, उसको भी सुनने में मिले नहीं। बहुत दृष्टांत सिद्ध किया। शरीर नहीं, ये कल्पना करते हैं कि मैंने सुख इंद्रिय का है, ये कल्पना में शरीर कारण नहीं, क्योंकि शरीर को तो छूते ही नहीं। अज्ञानी अपना राग परिणाम को छूते हैं, तो ये परिणाम में करता ये आत्मा है अज्ञानी। हाँ, नहीं तो जरी 5 पैसा लाख મળે, છોકરા ઠીક હોય, લડકા લડકી અમે સુખી, બીજા કરતા ગરીબ માણસને રદ કર સુખી है। इसके कारण शरीर सुंदर मिला है, सब लक्ष्मी मिले, वो कारण से वो भगवान ना पाते हैं। समझ में आया? भगवान त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव केवल ज्ञानी परमात्मा इंद्रों ने गंधर्वों समक्ष में आ बात कहते थे। ये बात है। जैन कुल में जन्मे पर सच बात मिले नहीं सुनने में, क्या करे। इसलिए सशरीर अवस्था में भी, सशरीर अवस्था में, शरीर सहित अवस्था में भी सुख का निश्चय कारण आत्मा ही है। देखो, आत्मा का अर्थ और अशुद्ध परिणमन ये है। आत्मा तिकाली तो कारण है नहीं, आप बता नहीं। अशुद्ध परिणमन ये सुख का कारण अज्ञानी मानते हैं। घबराए नहीं, આવી વાત है। सशरीरी अवस्था में भी शरीर सुख का, इंद्रिय सुख है तो दुख, तो लोग को मानते हैं ना सुख, ये अपेक्षा है सुख कहने में आया है। इसलिए सशरीर अवस्था में पण सुख का निश्चय कारण आत्मा, आत्मा का अर्थ त्रिकाली आत्मा नहीं है, अशुद्ध परिणमन ये आत्मा का है, ये कारण है। आत्मा है, ये आत्मा त्रिकाली आत्मा की बात यहाँ है नहीं। ये अशुद्ध परिणमन आत्मा का, ये अशुद्ध परिणमन सुख, इंद्रिय का सुख का कारण अज्ञानी मानते हैं, पर शरीर से सुख है कल्प इंद्रिय का, ये तो है ही नहीं। खुशेठ बहुत कम लोगों को ये जमे। आप ऐसी बात भगवान बात तो अरे भगवान अंदर विराजते हैं, परमानंद का नाथ, अतीन्द्रिय अमृत का सागर भगवान आत्मा है। ये अमृत सागर की दृष्टि करने से शरीर ने इंद्रिया तो है ही नहीं, पर कोई विकल्प भी है ही नहीं, अरे पर्याय का आश्रय है नहीं। पर्याय भी व्यवहार नहीं है। निश्चय नहीं का विषय जो शुद्ध न्यायिक भाव आनंद प्रभु,
उसका आश्रय करने से जो आनंद आता है, ये आनंद कोई पर्याय नहीं से, शरीर से, विकल्प से भी है नहीं। तो यहाँ शरीर अवस्था में भी आत्मा शुद्धपणे प्रणमता है, ये परिणमन कारण सुख कल्पना का है, शरीर नहीं। शरीर मारा है, धूल है, माटी राख है तो राख हो जाएंगी, धूल मसान में राख इतनी भी नहीं होगी। अग्नि उठेगी, अग्नि हड़ 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 राख होकर इतनी राख हो जाएगी, और पवन आए तो रजकण तेरा रखड़ेगा, जहाँ रजकण तेरा रखड़ेगा, जेम रखड़ती रेल પછી નર્તન પામી શક્યા, ચેત ચેત નર ચેત રજકણ તારા, આ રજકણ શરીરના રખડશે ને જેમ રખડતી રે, પછી નર્તન પામી શક્યા, ચેત ચેત નર ચેત। 20 વર્ષના જુવાન માણસ આગળ જાય છે, 25 વર્ષના એક ક્ષણમાં। और एक स्वरूपचंद भाई कहते थे, क्यों गांव की बलकापुर स्वरूपचंद से लड़का है, उत्साह बहुत है, कापड़ का व्यापारी है, 10-10 हजार कापड़ का, मोक्ष मार्ग सारा कंठस्थ है। मोक्ष मार्ग वो जुआन है, अभी तो लगन किया, पहले तो कुंवारा थे, 4 से हमारे व्याख्यान में आते, ત્યાં आए। तो ये कहते थे कि महाराज हम एक बैठे थे और मेरा मित्र बैठे थे, 28 वर्ष की उम्र का, बात करते थे, नहीं नख में रोग नहीं, बातचीत करते थे आम थी देखो तो बरु स्वरूप छोकरो છે, બહુ હોશિયાર છે, મોટો કાપડનો વેપારી છે, 10-10 હજાર તેદી હતું, અત્યારે વધી ગયું છે, 10-10 હજાર કાપડનો વેપારી છે। કુંવારો હતો ત્યાં મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ બહુ મોઢે કંઠો, अभी तो अभ्यास है। तो ये कहते हम बैठे थे मित्र, कहीं बातचीत करते थे, कहीं रोग नहीं। आम कि मैं नजर करी क्या खलास देह छुटी गया, काई रोग नहीं। देह नहीं स्थिति अंत आवे तो प्रभु ये तो छूटेगा ही। हम छूटेगा ऐसा कहकर नहीं छूटेगा। मृत्यु का पहला नगारा वागेगा, पीछे मृत्यु, ऐसा नहीं अकस्मात एकदम दे छूटेगा। ये तेरी चीज क्या है? आई तो इंद्री का सुख में शरीर किंचित कारण नहीं, वो अज्ञानी की कल्पना रूप आत्मा की परिणति कारण है। आत्मा शब्द ही लेना यहाँ, आत्मा इतनी तिखाली आत्मा नहीं तो आत्मा अपनी शुद्ध परिणति करते हैं, ये आत्मा कारण है सुख की कल्पना में, इंद्री की सुख की कल्पना में, मिथ्या भ्रांति से। अरे जुआन शरीर होए, जुआन स्त्री होए, अने भोग में आनंद माने। अरे एक बार तो नजर ऐसा देखा था एक आदमी को, मैं भाई रात्रि का टाइम हो गया है ना, तुम पेंडा क्यों लिया? पौन से पेंडा पेंडा तो पीछे हम समझी गया, ठीक है घरे जाकर भोग लेने के पहले पेंडा खाकर भोग लेगा। हाँ तो बहुत अनुभव तो बहुत हो गया है ना, 90 वर्ष हुआ शरीर को, 90 वर्ष, 100 में 10 कम। रात्रि को 8 बजे हजी हमना 6 बजे तो खीचड़ी कढ़ी भजिया खाधा से ना, 9 बजे आ पेंडा केम देते? समझी गयो, दुनिया क्या करती है।
ભોગ લેને પહેલે પેંડા ખાઈને પછી ભોગ લેતે તો પછી મજા પડે વધારે. હા 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 હા. ભ્રમણા તો દેખો એ ભ્રમણાના શરીર તો બિલકુલ કારણ નહીં એમ કહેતે हैं. हाँ 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 हाँ. आत्मा कारण किया ना, निश्चय कारण आत्मा ही है. आत्मा कारण का अर्थ उसकी अशुद्ध परिणति ही कारण है पंडित जी. हाँ हाँ हाँ. एक बात पण भगवान कहते हैं यथार्थ समझने का तो न काई समझना नहीं, हरे जहां आंधळे आंधळा काई खबर नहीं है. अरे जिंदगी चाली जाए से भाई. हाँ हाँ. अर्थात इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण आत्मा का ही अशुद्ध स्वभाव है. देखो आया, आत्मा का कारण आत्मा का अशुद्ध स्वभाव, अशुद्ध भाव. हाँ हाँ हाँ. इन शरीर नहीं अकिंचित कर, शरीर इंद्रियां आत्मा की कल्पना सुख में किंचित कारण नहीं. हाँ हाँ हाँ. कर्म भी कारण नहीं, उसका अशुद्ध स्वभाव कारण है. अशुद्ध स्वभाव में परिणमित आत्मा ही है. अशुद्ध मलिन स्वभाव में परिणमित आत्मा ही स्वयं में इंद्रिय सुख होता है. इंद्रिय ना सुख स्वयं में अशुद्ध परिणमन से होता है. उसमें शरीर कारण नहीं. सेठ है तो तुम्हारा पैसा नहीं, क्या ढूंढ नहीं तो बात है नहीं है यहाँ. सेठ बंगला 6 लाख ना मकान है, 6 लाख का मकान है उसका, और वो 60 लाख का मकान है नहीं. आमोद नहीं रमणीक मुंबई में हम उतरे थे उसका मकान में. रमणीक भाई है, रौनक कंपनी है. ये रमणीक भाई નું નામ છે રौनक. 70 લાખનો તો એક મકાન है. એમાં ઉતર્યા था, દરિયાને કાંઠે છે. तो हम उतरे थे तो दरिया बहुत नजीक था. तो मैं वो बहुत आनंद आया होगा. ये बात तो कहते हैं. जहाँ देखे तो बगला मौत बस लेट खाते थे. बगला तो मैं पूछा सेठ को कि आ बगला क्या સુધી जाता है. कि महाराज 20 मील સુધી बगला जाता है समुद्र में मच्छी को लेने को. उसका नजीक है बंगला. सामने दूर जाते 20 मील સુધી ઝાડ નહીં, પાલો નહીં, પણ મચ્છને માખ ખાને को. અને 20 મીલ જાય અને 20 મીલ આવે. નજીક બંગલો દરિયા. આવી સ્થિતિ બાપા. એવા આનંદ ભાવ થયા ભાઈ, તને ખબર નથી. અર્થમાં કંઈક દેખ્યા, શરીર ના ઠીક ભૂલી ગયો બધું. 20 મીલ શેઠ, 20 મીલ સુધી બગલા. એમને બગલા કહેતા. મચ્છી જ્યાં સુધી ન મળે ઉપર મચ્છી આવે તો ખાય ને, હેઠે અંદર ગરી ગયા ને, પાણીમાં તો ગરાય નહીં. તો આમ 20 મીલ સુધી ચાલે જતા. અરે રે, આ મરીને પાછા નરકમાં જાના. નરક યોનિમાં ઉત્પત્તિ. એના દુઃખ સયા ન જાય ભાઈ, એવા દુઃખ प्रभु ते सहन કર્યા था. प्रभु तो कहते हैं कि पहली नरक में 10,000 वर्ष की स्थिति में अनंत बैर गए तुम, और 10,000 ने एक समय की अनंत बैर, 10,000 दो समय में अनंत बैर, 3, 4, 500 असंख्य अनंत समय करते 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 सागर रूप સુધી चले गए. अनंत बैर. जिसका दुख की वेदना
जीव से ने करोड़ों भव से न कही सकाय भगवान एम कहते हैं रत्नकंठ सावकाचार में। हाँ 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 भूली गयो थी जाए थोड़ू कहीं शरीर ने इंद्रिया ने। हाँ 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 ये आई कहते हैं क्योंकि सुख रूप प्रणति और शरीर सर्वथा भिन्न होने के कारण क्या कहते हैं देखो कल्पना में सुख की पर्याय जो है कल्पना नहीं ये प्रणति ने शरीर बीच में तो अत्यंत अभाव है तदन भिन्न है। हाँ 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 ये शुद्ध प्रणति में जो सुख मानते हैं ये प्रणति शरीर को छूते नहीं और शरीर प्रणति को छूते नहीं। अरे रिया केम बैठे। हाँ 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 समझ में आया। क्या किया शरीर सर्वथा भिन्न होने के कारण किससे इंद्रिय का विषय में कल्पना आया कि मेरे ठीक है ऐसी अशुद्ध जो प्रणति पर्याय उसमें शरीर बिल्कुल भिन्न है शरीर बिल्कुल भिन्न है। हाँ हाँ सर्वथा भिन्न है सर्वथा भिन्न है कथनचित भिन्न ऐसा नहीं। हाँ 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 इंद्रिय का सुख की प्रणति में शरीर सर्वथा भिन्न है कथनचित भिन्न है कथनचित अभिन्न है ऐसा है नहीं। हाँ हाँ एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य में अत्यंत भाव है। भगवान आत्मा की अशुद्ध प्रणति में शरीर का अत्यंत भाव है और शरीर की पर्याय में अशुद्ध प्रणति का अत्यंत भाव है। हाँ 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 આવી વાત છે। शरीर सर्वथा भिन्न होने के कारण सुख और शरीर में नीचे से किंचित मात्र भी कार्य कारणता नहीं है। देखो इंद्रिय सुख की कल्पना में शरीर किंचित कारण नहीं सर्वथा भिन्न है उसका बिल्कुल कारण नहीं। हाँ 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 अब इसी बात को डट करते हैं 66 एगंतेन ये देहो सुहम देयी सकुणयी सदेवा विषयवसेण दुसुखम दुखम वाहवै स्वयं आत्मा एकांत थी स्वर्गे ने। क्या कहते हैं कि स्वर्ग में तो सुख होगा कि नहीं शरीर के कारण से आए भले न हो ત્યાં સુખ का कारण शरीर नहीं हम कहते हैं। एकांत थी स्वर्गे दे करे नहीं सुख देहिने पण विषय वश स्वयमेव आत्मा सुखवा दुखताय छे। હા 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 અરે ભગવાન એવી વાત પણ સાંભળવી કૃષ્ણ મળે ભાઈ લોકોને હા હા બહારની હો હા અરે ભાઈ પૈસા પૈસા તમારે ત્યાં તો બધી શું કામ કીધું મેરોબી પૈસા કરોડોપતિ માણસો હવે એને આ ક્યાં સાંભળવાનું મળે। હા હા કરોડપતિ હે કરોડ એટલે ધડ જડ એનો પતિ એટલે ધૂળનો પતિ હે। હા હા પણ એ धूल के कारण से पति मानते हैं नहीं एम के ये ममता है कि मेरी ये चीज ममता का परिणाम में धूल में अत्यंत अभाव है। हाँ 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 ये ममता परिणाम में लक्ष्मी छूती नहीं लक्ष्मी को ममता परिणाम छूते नहीं। આવી વાત છે લોકમાં તો પ્રસિદ્ધ ગાનપણ में હોય ને। हाँ तो भगवान की कॉलेज है ना भाई भगवान की कॉलेज है रणलोकनाथ
कॉलेज कई जगह खुलनी चाहिए, दूसरी जगह खुलनी જોઈએ। ખુલ્લી આ જેને ગરજ હોય આવે। અમારા રાયચંદભાઈ વિનંતી કરી છે ની નેરોબીની પૂંજાભાઈ ન્યાના છે ને ત્યાં મકા મંदिर हुआ है ना जेठ सुद 11 में भीम 11 में 15 लाख का मंदिर 2000 वर्ष में अफ्रीका में मंदिर दिगंबर नहीं, ये मंदिर का ત્યાં पाया हो गया है और मंदिर कितना तैयार भी हो गया है। तो विनती करने को आए थे। ये बच्चे आने वाला था पर सरकार की रजा न मिले आया नहीं। अच्छी कैसे तो आवशू कि भाई बना मैं आवशू पर इंजेक्शन मिजेक्शन नहीं देगा। हाँ इंजेक्शन दे फिर ये कहीं नहीं है। अरे भाई ये क्या चीज। अफ्रीका क्या 2000 वर्ष में कभी दिगंबर जैन की नाम नहीं था क्या। ये 15 लाख का मंदिर बनाते हैं तो 15 लाख तो कहते हैं पर विशेष हो गया। रायचंद भाई कहते थे वो कई अपने कहीं अपने कहीं सुबह गया के रायचंद भाई कहते थे। उसने ये मंदिर के पाया में उसने 2,10,000 दिया है रायचंद भाई जी। मंदिर का पाया ना क्या था 2,000 2 लाख में 2,000 उसका लड़का बड़का है नहीं। लड़का लड़के है नहीं, माँ है और स्त्री है न पोती 3 है। 2,02,000 दिया। जेठ सुद 11 में नेरोबी अफ्रीका में मंदिर का मुहूर्त हुआ तो अभी दिया तो अभी तैयार हो गया। हमें थोड़ा थोड़ा आता दिसंबर में पंचकल्याणी करने का भाव है उसको अफ्रीका में। हाँ हाँ शरीर बरी ठीक होगा तो आएगा बस क्या करेगा। 6 कलाक नो तो रास्ता है ट्रेन में। ट्रेन शू है ट्रेन 100 लोग है यहाँ 160 घर है। श्वेतांबर का सब दिगंबर हो गया है। श्वेतांबर दिगंबर हो गया है। 8 घर तो करोड़पति है, बाकी दूसरा कोई 15, 20, 25 लाख ऐसा है 60 घर है। अफ्रीका में कायम वांचन होता है। यहाँ का प्लेन में भगवान की मूर्ति दिगंबर मूर्ति ले गया है। कायम पूजा होती है, वांचन होता है। सारा समय सार का टैप रिकॉर्ड नहीं है 5,000 टैप रुकनी वांचन है 25-30 वर्ष है। मार्ग तो आ है भैया। आज भाई लेखायो છે કેલાચંદનો લેખાયો છે એમાં એને लिखा કર્યા कि आचार सुधी कहीं पर निकलती थी स्थापना फलाना विरोध लोग बहुत करते थे। हवे कांजी स्वामी का विरोध सोमगढ़ का करते हैं लोग। कौन हवे तो प्रचार उसका ऐसा बढ़ते हैं कि तुम्हारा विरोध कम नहीं करे। देखा जाता है क्योंकि है ना पंडितों ऐसा तैयार हो गया है 10-10 हजार मानस में उसकी चलती है अभी तो। जूना विद्वान बहुत चलती नहीं हवे। सत्य मार्ग ऐसा तो हुकमचंद जी पंडित मानचंद जी बाबू भाई बहुत प्रचार 10-10 हजार मानस में। मार्ग सत्य है एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ आका है गड़बड़ मन है। परम सत्य परमागम भगवान की वाणी है उसमें से हमारा निकला है। पर वो मार्ग जीना बहुत प्रभु। ये दया दान व्रत पूजा भक्ति में करोड़ों खर्चे पर ये धर्म नहीं। ये राग की मंदता हो तो पुण्य बंद होगा। आत्मधर्म नहीं प्रभु। आत्मधर्म तो अंतर ज्ञायक स्वरूप भगवान
जिसका सम्यक दर्शन में ध्येय में पूर्णानंद अभेद आया, जिसकी पर्याय का भेद भी जिसका दर्शन का ध्येय में नहीं, सम्यक दर्शन का ध्येय में पर्याय का भेद भी नहीं, तो राग तो कहां से आया? एवो मार्ग है भाई। अंतर आलोक, अंतर आनंद मूर्ति प्रभु, विनायक भूतार्थ भाव, भूत नाम छतो, अर्थ नाम भाव, छतो पदार्थ सती वस्तु भाव महाप्रभु है। उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन में आनंद होता है, तब धर्म होता है, बाकी सब अर्थ होता है। ये હું લખ્યું મેં આજ ચેતનજી, આપણે ઠીક લખ્યું એમ કે વાંચો તમે એમાં આજ વાંચ્યા છે, આ ફેર ઠીક લખ્યું કે એ લોકોનો એટલો પ્રચાર હેરો ચાલે છે કે મોટા મોટા માણસો એના પંડિતો તૈયાર થયા છે અને એ વધતા જાય ને જૂના પંડિતોનું હાલતું નથી। ભાઈ માર્ગ આય બાપુ, આ તો પરમાત્મા ત્રણ લોકનો નાથ सिमंदर भगवान पासे क्या मार्ग आया है। मार्ग कहीं बाहर से आया नहीं भाई। लक्ष्मी से विलेख मोटो से समय आया है ऐसा लिख करते हैं। जैन संदेश देखना ठीक लिखा, फिर कोई वक्त तो नहीं कोई आईना माने ने कि भाई महाराज नहीं पगला थाय तो पैसा थाय, पर तो कोई माने में हमारे क्या पैसा पैसा उसके क्या होता है, तो पुण्य होता है। અહીં से क्या होता है, અહીંના ભક્તો કેટલા ગરીબ बहुत है, पैसा वाला है तो बहुत क्या उसमें क्या, कारण के यहाँ पैसा वाला बहुत आते हैं और हमारा कुटुंबी भी पैसा वाला है, गृहस्थाश्रम में दुकान भी पैसा वाली है, बड़ी महाराज में दुकान है, हम 9 वर्ष रही, वो दुकान है 40 लाख रुपया है, 3-4 लाख की आमदनी है अभी दुकान। ऐसा कुटुंबी पैसा वाला, यहाँ बड़े बड़ा सेठ जाता आता है तो पूरे पैसा वाला ही जाने महाराज ने कारण पैसा मिलता है। हम लोग को मानते हैं लकड़ी में है कुछ, हम कहते हैं। તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આ ગાથાનો શેષ ભાગ આપણે આવતી વખતે લઈશું। હવે સુખધામ બોલીએ।